Today we are going to discuss the functions in Java. Okay. As we know that there are something which is called library function. Pura full concentration on the topic. Function is also called a method somewhere, but I'm just taking the name functions. Okay. See, after completing this lecture, I will definitely upload this lecture to my channel Anis Sir's Technology, and you can watch from there as a revision. So just I want to start. What are the library functions and the built-in functions? Have you ever heard about library functions and built-in functions? Library functions and built-in functions are those functions which are available in the Java for use. They are ready-made functions. They are already available. You can simply use it. Can you please tell me the example of the library function of the built-in function? SQRT. Don't worry about the topic. बस सबसे पहले जो बता रहे हैं उसको आप समझिए. POW. Understand? ये functions आपने पढ़े हैं ना? Yes sir, मैथ लाइब्रेरी फंक्शन. क्या इन function को आपने create किया है? Are you the creator of this function? No. Sir. Java is the creator of this function. Java ने इन function को create किया है. Now what about the second category? Length, caret. ये सारे फंक्शन जावा ने हमको क्रिएट करके दिए हैं. तो जो फंक्शन जावा हमें क्रिएट करके देता है उनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. इज देयर. अब यहां से जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. इज देयर एनी फंक्शन व्हिच कैन calculate the factorial, comma prime, comma perfect? Is there any function? No sir. Can you please tell me, is there any function through which? No sir. Is there any function through which we can calculate the prime, we can calculate the factorial, or we can calculate the perfect? No sir. Okay, no. Sir, Java has not provided as such function which can be used to calculate the factorial, perfect and prime. But Java has provided the provision to create your own function. अगर Java ने कोई function create नहीं किया है तो आप अपनी functionality और skill से वो function develop कर सकते हैं. और जब हम अपनी requirement के according, if we create any function as per our need and requirement, then that function is called UDF, and the full form is user defined. Understand? Understand? If we Yes, sir. create any function as per our need and requirement, then that function is called UDF or user defined function. आप अपने अकॉर्डिंग प्राइम का फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फैक्टोरियल फंक्शन डेवलप कर सकते हैं. नाउ आई जस्ट वांट टू पुट अ स्मॉल वन मोर एग्जांपल. दिस इज वेरी एग्जांपल. ठीक है. आप गए किसी शोरूम में और वहां पर आपने कहा कि मुझको व्हाइट शर्ट चाहिए. पीटर इंग्लैंड के शोरूम में चले गए, वैन सन में चले गए, ठीक है, कहीं भी चले गए, ठीक है, और वहां पर आपने कहा मुझको व्हाइट शर्ट चाहिए, ब्लैकबेरी में चले गए, तो आपको मिल जाएगी ना, इजिली मिल जाएगी. इट्स अ वेरी कॉमन कलर. ब्लैक चाहिए, मिल जाएगी कि नहीं? कैन यू प्लीज टेल? Yes sir. अब आपने कहा कि मेरी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है. Half portion should be white and half portion should be black. Sleeve should be blue. Now, is it possible? Half portion should be white, half portion should be black, and the sleeve should be blue. Is it possible? Sir.
No, not possible. Not possible. No, sir. It's an uncommon requirement, and any outlet does not have any uncommon requirement. But आप यहाँ पर as a customer जिद कर रहे हैं, I only want this combination. तो वो आपको सजेस्ट करेगा, सर we don't have the ready-made piece of this, but you can go for stitching as per your requirement. आप टेलर के पास चले जाइए, इन सारे कलर्स के क्लॉथ को लेकर के, और उससे आप जैसा बताएंगे वैसा बन जाएगा. मतलब as per your need you can develop this piece. Are you getting my point? So something which is available as a ready-made, something you can construct or develop as per your need. All right. There are so many examples. There are so many examples. If you are going with flat, तो flat जैसा बना है आपको वैसा accept करना पड़ेगा. अगर आपकी कुछ अलग requirement है, take a plot and do the you can do your own construction. Do you understand? This is all about the Yes, basics. sir. This is all about the basics. Okay, fine. Now, let me clear all this. Now, अब आते हैं हम सर. What is the need of function? What is the need of function? चाहे वो हमारे built-in function हो या फिर हमारे UDFs हो, इनकी need क्या है? Biggest need, Sir, to decrease the time utilized. हम बताते हैं कि biggest need क्या है. The need number one is reducing the code. ठीक है, ज्यादा कोड आपको नहीं लिखने पड़ते. सेकंड, द फर्स्ट, आपको इट्स माय सजेशन, यू जस्ट रीड. आपको थोड़ा बहुत इसको लिख लीजिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिए. The second is reusability, reusability of code. Understand? Reusability of the code. Reducing the code, reducing the line of code कहते हैं ज्यादा अच्छा होगा. Line of code. Understand? अगर आपने कोई एक फंक्शन डेवलप कर लिया है, ठीक है, और दोबारा अगर आपको उसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आपको सेम कोड नहीं लिखने पड़ेंगे. आप उस फंक्शन को यूज कर लीजिए. आप उस फंक्शन को यूज कर लीजिए. तो इसको हम लोग कहते हैं reducing the line of code and reusability of code. This is the biggest advantage of defining the function and using the function. Okay? Okay, fine. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, अगर आपने एक मिनट, अगर आपने SQRT फंक्शन को एक बार यूज किया तो वो आपको कुछ रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप 100 टाइम यूज करेंगे तो क्या उसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, या वो कुछ वीक रिजल्ट्स देने लगेगा, या वो कुछ इनकम्प्लीट रिजल्ट देने लगेगा, समथिंग लाइक दैट. ऐसा होता है? ऐसा होता है? इफ यू आर यूजिंग द सेम फंक्शन नंबर ऑफ टाइम्स तो क्या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? No, sir. डाउन नहीं होगी. वो जैसे आपको फर्स्ट टाइम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था वैसे ही आपको 1000 टाइम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. देयर विल बी नो डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस. अंडरस्टैंड? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? कहीं पर कोई प्रॉब्लम? तो फंक्शन बनाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में कोई, ओके, आफ्टर क्रिएटिंग फंक्शन, it should be written somewhere नीचे लिखना पड़ेगा. After creating a function, it can be called number of times. एक बार अगर आपने फंक्शन बना लिया तो आप उसको जितना चाहें उतना यूज करिए, no problem. Performance will not down, result will be same as it is. Okay. Speed, अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी है, अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी है, आपने फंक्शन का यूज नहीं किया, आपने हर चीज के लिए अलग अलग कोड्स लिखे हैं, तो आपका प्रोग्राम अगर बहुत लेंथी है, द हैवी एप्लीकेशन डज नॉट रन फास्ट. कोई भी एप्लीकेशन अगर बहुत हैवी है, और हैवी एप्लीकेशन होती है नंबर ऑफ कोड इंक्रीज होने की वजह से,
तो जब ज्यादा कोड होंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली हैवी होगी, एंड हैवी एप्लीकेशन डज नॉट रन फास्ट। और अगर एप्लीकेशन आपकी फास्ट नहीं है तो इट विल नॉट बी पॉपुलर फेमस। ऑलराइट, अच्छा अब हम आते हैं सर, can you please give me a situation or scenario where the function will be used? Very important example is coming, or after the 5 minutes we will jump to the programming. Very important example. Okay, very important example. और थोड़ी देर के लिए माइंड में ये सोच लो, थोड़ी देर के लिए क्या हम लोग इस सिचुएशन में we don't know anything about the function, how to create the function. हमें नहीं मालूम है कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। Now, India, after the India, I want to print 40 asterisks. Sorry, ये क्या है? I want to print how many asterisks? 40 asterisks. 40. America. और इसके नीचे भी हमको 40 एस्टेरिस्क चाहिए, बराबर? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आराम से समझिएगा एग्जांपल। ये एग्जांपल समझ में आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फंक्शन समझ में आ गया। इंडिया, अमेरिका, जापान, और इसके नीचे भी हमको 40 एस्टेरिस्क चाहिए। फिक्स एस्टेरिस्क भी नीड है। एंड उसके बाद हमने लिखा IICCS, my name of coaching, name of institute and 40 asterisks. अब अगर ये हमको बनाने को दिया जाए जावा में, हमें ये प्रोग्राम डेवलप करना है जावा में, तो हम कैसे डेवलप करेंगे? Everybody have to think for the few seconds. 5 सेकंड आपको सोचना है, कोई बोलेगा नहीं, 5 सेकंड आपको सोचना, सबको सोचना। प्रोग्रामिंग सिर्फ मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग उन लोगों का सब्जेक्ट है जो सोचना जानते हैं, जिनकी थिंकिंग अच्छी हो, और थिंकिंग से ही लॉजिक डेवलप होती है, और लॉजिक को ही हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू बेटर थिंक, यू कैन नॉट बी अ गुड प्रोग्रामर। हाउ टू डू दैट? सर, Can you summarize it? Summarize. So can you tell the whole condition again? Okay. So in short. India we have to print, and after India we have to print the 40 asterisks. Then America we have to print another statement, and after that we need print 40 asterisks. Then Japan we have to print. Then after that we again require the 40 asterisks. Similarly as so on. These are the three countries along with the institution name and 40 asterisks after every point. अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। सर, अगर मुझे ये बनाने को कहा जाए तो जितनी चीजें हमारे पास हैं उनकी हेल्प से हम बनाएंगे। तो इंडिया तो एक यूनिक नेम है, उसको तो हम SOP के साथ लिखेंगे। कैन यू प्लीज एग्री? SOP? Yes sir. इंडिया। Yes, sir. और इंडिया के बाद हमें 40 एस्टेरिस्क प्रिंट करनी है, एंड वी नो द प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो हम यहाँ पर एक फॉर का लूप चला देंगे, यहाँ पर एक फॉर का लूप चलाएंगे, फॉर 1 to 40. I'm just writing algorithm. Don't worry about the syntaxes. And print. Fine. Can you please confirm? Yes sir. That's fine. सर लंबा बनेगा ऐसे तो। और कोई तरीका है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। Do you have any method? सर डायरेक्ट 40 into abstract नहीं कर सकते? डायरेक्ट मतलब एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक। हाँ, तो अनप्रोफेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि हम लूपिंग जानते हैं। मान लो यूजर ने 100 दे दिया यहाँ पे 40 की जगह पर, तो हम गिन तो के सर पहले उसका वैल्यू मांगे, फिर उसको उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, फिर वैल्यू नहीं abstract मांगनी, into वो वैल्यू। हमको फिक्स 40 एस्ट्रिक ही चाहिए। हमें वैल्यू यूजर से नहीं मांगनी है, हमको फिक्स्ड 40 एस्ट्रिक ही चाहिए। तो उसके लिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा 1 से 40, एंड दिस लूप विल प्रोवाइड द 40 एस्ट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद हमारे पास अमेरिका आ रहा है। तो अमेरिका को प्रिंट करने के लिए
यहां पर SOP अमेरिका। गुड, और अमेरिका के नीचे वी अगेन रिक्वायर्ड द 40 एस्टेरिस्क, तो फिर से हमको लूप चलाना पड़ेगा। कौन सा लूप सर? वही फॉर का लूप, फॉर 1 to 40 एंड प्रिंट एस्टेरिस्क, और इसको हम कलर चेंज कर रहे हैं बिकॉज इट्स डिफरेंट, आपको समझाने के लिए। सर आ जाएगा इससे, आप सुनो। और फिर उसके बाद SOP जापान, and after that again one loop 1 to 40 and print, again we required the 40 asterisks, can you please confirm? Yes, sir. और फिर उसके बाद IACCS और फिर उसके बाद 40 asterisks। तो डू यू ऑब्जर्व वन थिंग कि बार बार हमको फॉर का लूप रिपीट करना पड़ रहा है। वी आर डूइंग द रिपीटेशन ऑफ फॉर का लूप। और अगर मान लो ऐसे ही 100 कंट्रीज होती और उनके नीचे हमको एस्टेरिस्क चाहिए है, तो हमें 100 टाइम इस फॉर के लूप को रिपीट करना पड़ता, एंड वी डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन फॉर दैट, and we don't have any other solution for that। अगर हम इसको हायर साइड पे देखें तो अगर 100 cities 100 countries are there, then 100 for loops will be needed or required। the application size or the program size will be very lengthy, but we don't have any other option। हम और कुछ कर नहीं सकते, हम फंक्शन के बारे में जानते नहीं है। सर understand? Do you understand the situation? सबको सिचुएशन समझ में आई? Yes, sir. आराम से सब लोग देखो। Yes, sir. इस एग्जाम्पल के अगेंस्ट में इस सॉल्यूशन को देखो। हमने एरे पढ़ा ही कहाँ यार? हमने बोला जितना हमने पढ़ा है उतना यूज करते हुए। हमने क्या पढ़ा? इफ पढ़ा, एल्स पढ़ा, व्हाइल पढ़ा, फॉर पढ़ा, बस ये तो पढ़ा। लेकिन सर ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी को यूज करना है, और अगर हम एरे भी यूज कर लेंगे तब भी लूप तो चलाना ही पड़ेगा 40 एस्टेरिस्क के लिए। एरे का मतलब ये नहीं है कि आपके 40 एस्टेरिस्क ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वी हैव टू हैंडल द लूप, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिंट लाइक दैट। सर इन सब चीजों में मतलब स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन है कि ये सारी प्लेसेस है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यूजर से बोले कि एंटर प्लेस और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट दे दे और ऐसे कुछ चला ले। ये प्रोग्राम एक्चुअली यूजर चॉइस पे नहीं है, हमको यही फॉर्मेट प्रिंट करना है, हमें इसमें यूजर को इन्वॉल्व नहीं करना है। मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हमको 40 एस्टेरिस्क एग्जैक्ट चाहिए, अगर यूजर से हम इनपुट कराएंगे तो वो 80 भी दे देगा, वो 10 भी दे देगा, वो 0 भी दे देगा, वो 1 भी दे देगा। इसलिए हम यूजर का इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं चाहते हैं जहां हमको फिक्स आउटपुट देना हो। तो फिक्स आउटपुट के लिए This is the only way. This is only the way। दिव्यांश, वेरी गुड। So this is only the way, we don't have any other solution for that। हम इसका रिसर्च कर चुके हैं। अब देखो, Okay, sir. अब देखो ध्यान से देखना, अब इसमें क्या चीजें हैं जो रिपीट हो रही? What are the repetition in this? सर लूप रिपीट हो रहा है। वेरी गुड। मैं जिस जगह पे तुम लोगों को लाना चाह रहा हूं, तुम धीरे धीरे उस पॉइंट पे आ रहे हो। सर ये जो है, ये भाई इंडिया है, वो अमेरिका है, वो तो अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्टेटमेंट से इंडिया भी आ जाए और एक ही स्टेटमेंट से अमेरिका भी आ जाए। इस पे तो हम एग्री कर रहे हैं कि ये एक यूनिक स्टेटमेंट है, इसको तो हमें 3 बार लिखना ही पड़ेगा। बट सर ये जो एक कॉमन टास्क हो रहा है, इसको किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए कि लूप हमारा सिर्फ एक बार चले और तीनों जगह पर प्रिंटिंग हो जाए। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? हम सिर्फ लूप एक बार चलाना चाहते हैं। Okay. I only want to execute a single loop. I want to write a single loop। हम सिर्फ एक बार लूप लिखना चाहते हैं।
और 3 ही नहीं, अगर 1000 कंट्रीज भी आ जाएं और उनके नीचे भी एस्ट्रिक हो तब भी हमारा लूप एक ही रहे. Now this will be the biggest achievement. Can you please tell? I am not discussing about the topic. अभी हम टॉपिक पे आ ही नहीं रहे, हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, उस क्यों का आंसर ढूंढ रहे हैं. हम आपको डायरेक्टली आते फंक्शन पर, यू डोंट नो हैव द लॉजिक. सर व्हाई वी आर लर्निंग द फंक्शन? अभी तक हमारा काम एकदम अच्छा चल रहा था, सडनली यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द फंक्शन एंड वी डोंट नीड इट. आप नहीं पढ़ेंगे ना उसको. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? सर एक ही कोड बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ेगा नहीं, लिखना पड़ रहा है. देखो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? It will increase reusability of code. यस सर. तो लिखना पड़ रहा है कि नहीं? अगर हमें यही काम सिंगल लूप से करना है तो देयर इज ओनली अ वन रेमेडी एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शन. Not other than that. Okay. Now ready for the practical implementation of this. किसी को कुछ पूछना हो, अभी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पूछना हो, बट फिर भी if you want to ask, इसको आपकी कॉपी पर ऐसे ही लिखना है, ब्लैक पेन से ये बनाना है पूरा. ठीक है. नेक्स्ट वीक हम आप लोगों के घर आ रहे हैं कॉपी ओपी चेक करने, टीचर विजिट. जिसका घर मेरे घर से बहुत करीब है पहले हम वहां जाएंगे, समझ रहे हो? उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे. कंट्रोल वी. अच्छा समझ में आया? मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है. इन योर ग्रुप दिस इज देयर विद एचडी क्वालिटी, पूरा एकदम फाइन. ओके. नाउ अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से. लेट मी स्टार्ट द ब्लू चेन. ओके. क्लास का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, लाइक रिलेटेड टू द टॉपिक रखना है तो फंक्शन डेमो ऑलरेडी देयर. क्या है? UDF. ओके, नो प्रॉब्लम. हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि फंक्शन डेमो इज अ वेरी गुड नेम. मैं अपने फंक्शन का नाम FUNCTION फंक्शन डेमो. ओके. कहीं पर कुछ ना समझ में आए यू कैन इमीडिएटली आस्क. ओके. सबसे पहले क्लास, क्योंकि बिना क्लास के तो कुछ नहीं हो सकता. फंक्शन डेमो. You want to create or establish a function. 10 मिनट के बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी and you know what to do. Public, हम अपना खुद का फंक्शन डेवलप कर रहे हैं तो पब्लिक, वाइड, और अब वाइड के बाद हमें फंक्शन का नाम देना है. तो आपका फंक्शन है, यू आर द क्रिएटर. अब आप जो समझ में आए रखिए, जो समझ में आए रखिए. तो हम रख लेते हैं प्रोसेस and the open bracket closing bracket. सर मेन की जगह कुछ भी रख सकते हैं सर? मेन तो बनेगा ही, मेन फंक्शन तो बनेगा ही. ये अभी आप अपना फंक्शन डेवलप कर रहे हैं, मेन तो नीचे आएगा ही. Static स्टैटिक की जरूरत बताते हैं अभी. स्टैटिक की जरूरत नहीं, ठीक है? स्टैटिक की जरूरत नहीं है, बट आप चाहें तो चलिए हम यहाँ पर स्टैटिक लिख देते हैं. बताएंगे कि स्टैटिक और बिना स्टैटिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है. हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड. आप लिखते थे ना यहाँ पर, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते थे ना ऐसे. तो ये आपका मेन फंक्शन था, ये आपका मेन फंक्शन है. अब इसी तरह का हमने अपना एक फंक्शन डेवलप किया. दिस इज माई यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये हमारा फंक्शन है, ये जावा की तरफ से प्रोवाइडेड मेन फंक्शन है और ये हम अपना फंक्शन डेवलप कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग आवर ओन फंक्शन. टेल मी, up to this anybody have problem? And this is the body of function. Body of function. बॉडी ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो ये क्या कोड परफॉर्म करेगा.
अंडरस्टैंड? सपोज मान लीजिए कि आई एम कॉलिंग अ इलेक्ट्रिशियन, और वो इलेक्ट्रिशियन को हमने कॉल किया, तो अब वो इलेक्ट्रिशियन हमारे लिए क्या करेगा? तो जो उसकी स्किल्स और फंक्शनैलिटी है वो करेगा। तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, वो क्या करना बॉडी के अंदर डिफाइन होता है, यहां डिफाइन करेंगे। ओके, तो इट्स अ ब्लैंक फंक्शन, इट इज कॉल्ड अ ब्लैंक फंक्शन। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे आपने SQRT कॉल किया, POW कॉल किया ना कॉल, प्लीज, लेंथ कॉल Yes, किया, sir. कैरेट कॉल किया, तो आपने फंक्शन को कॉल किया नाम के थ्रू। कैरेट इज अ नेम, SQRT इज अ फंक्शन नेम, POW इज द फंक्शन नेम। सिमिलरली मेरे फंक्शन का नाम है प्रोसेस, दिस इज माई फंक्शन नेम एंड आई हैव गिवन दिस नेम ऑफ फंक्शन। ओके, आई विल टेल अबाउट पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि हम इस फंक्शन को बहुत ही ओपनली एक्सेस पे रखना चाहते हैं, मतलब ये फंक्शन इजीली कहीं से भी एक्सेस हो जाए, एंड आई वांट टू मेक माय फंक्शन पब्लिक, दिस इज पब्लिकली, इट कैन बी एक्सेस इजीली फ्रॉम एनीवेयर। स्टैटिक का रोल अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा स्टैटिक का रोल क्या है, ठीक है? अभी नहीं है। सर इसमें प्राइवेट प्रोग्राम्स भी बनते हैं क्या? सॉरी सर जैसे पब्लिक जहाँ पे यूज करते हैं वो पब्लिक के लिए होता है, तो सर क्या ऐसा कुछ प्राइवेट भी होता है? हाँ, प्राइवेट भी होता है। प्राइवेट का सिर्फ मैं बता दूं आपको, प्राइवेट का सिर्फ, मैंने कल एक नया बैच स्टार्ट हुआ है क्लास 10th का, और उसमें कुछ स्टूडेंट हैं, करीब अराउंड 10 to 12 स्टूडेंट नए हैं, वो अभी बहुत पीछे है आपसे। तो कल उन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाई इट इज द नीड ऑफ प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन, आप इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। If there are some very confidential data inside the function, then we make it private. सिर्फ एक कॉलेज है, resume the class। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, आने वाली 4 क्लासेस कोई मिस नहीं करेगा, 4 क्लासेस आपको मिस नहीं करना, बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो बॉडी में हमें क्या करना सर, बॉडी में हम एक लूप चलाएंगे, I is equal to 1, I less than equal to 40 and I plus plus। ये फंक्शन, ये लूप हमें 40 एस्ट्रिक्स प्रिंट करके देगा, like that। And after printing the 40 asterisks, we need a blank line। We know that nested looping, वहां पर भी हम एक लाइन को ब्रेक करते थे, ठीक, बन गया हमारा फंक्शन, माई फंक्शन इज प्रिपेयर्ड। अब देखो इसकी पावर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर हमने लिखा इंडिया। ऑलराइट, कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. और इंडिया के बाद हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी एस्ट्रिक्स आर देयर? 40. 40 एस्ट्रिक्स। तो हम एक लूप चला लेते हैं, 1 मिनट, अभी हम फंक्शन के बिना काम कर रहे हैं, 40 एस्ट्रिक्स एंड आई प्लस प्लस, ताकि आपको लाइन ऑफ कोड का अंदाजा हो जाए। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड वी नीड अ 40 एस्ट्रिक्स, और यहां पर अंडरस्टैंड, कोई फंक्शन का यूज नहीं कर रहे, बिना फंक्शन बना दिया है बट यूज नहीं कर रहे। इसे कॉपी कर लो, यू नो हाउ टू कॉपी पेस्ट, देख रहे हो प्रोग्राम का साइज। और यहां पर इंडिया की जगह पर एक तो प्रोग्राम का साइज बहुत बढ़ गया और कंजेशन बहुत आ गया, कंजेस्टेड अमेरिका एंड जापान, एंड यहां पर ACCS। अंडरस्टैंड? अब हम इसको रन करना चाहते हैं, आई वांट टू रन। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप कर दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिटी वाइज डिवीजन, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज,
Now this is a function without, this is a program without function involvement. There is no error. मैंने ये नहीं कहा आपसे कि अगर आप फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी. I never told. Absolutely fine. हम चाहते हैं कि एस्टेरिस्क थोड़ा इंडिया के नीचे आए. नो प्रॉब्लम. तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा. जस्ट Ellen, 1 minute please. ओके, रीज्वाइन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. क्लास चलेगी शाम को 7 बजे तक. और एलन, और उसके बाद में यार एलन, यस, ये वाला रन हो जाएगा, डोंट वरी. अब देखो ध्यान से, आउटपुट इज कमिंग. Output is coming, perfect output is coming, and the 40 asterisks are coming, but the program size is very lengthy. Can you please confirm? आप rejoin करिए, फिर हम बात करते हैं आपसे. Okay, sir. But the size of application is very high. How many codes are there? सर अगर टोटल प्रोग्राम का साइज निकाला जाए तो 47 लाइन ऑफ कोड इज देयर. ध्यान से रखना, 47 लाइन ऑफ कोड इज देयर. और ये 47 लाइन ऑफ कोड आगे भी बढ़ सकता है. अगर मान लो इसी तरह के और कॉम्बिनेशन प्रिंट करने को आगे, लाइक एक बार हम और इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहां पर. एक बार हमने और यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग एबीसी. मान लो ये भी एक कंट्री है. अब अगर हमने इसको कंपाइल करा एंड आफ्टर कंपाइलेशन वी आर प्रिंटिंग, देन ऑब्वियसली लाइन ऑफ कोड्स विल बी इंक्रीज. ठीक, एबीसी भी आ गया और लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होके कहाँ तक पहुंच गए? लाइन ऑफ कोड हमारे इंक्रीज होके पहुंच गए सर 54 पे. 54. ओके, 54 लाइन ऑफ कोड. यही काम हमें फंक्शन से करना है. तो ये जो आप हर एक कंट्री के बाद एक लूप चला रहे हैं जिससे 40 एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहे हैं, क्लियरली समझना. यहाँ एक लूप चला रहे हो ना जिससे 40 एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहे हैं. कैन यू प्लीज कंफर्म? और नीचे आने के बाद अमेरिका के बाद भी तुम एक लूप चला रहे हो जिससे 40 एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहे हैं, बराबर? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, yes. और जापान के बाद भी तुम एक लूप चला रहे हो जिसमें 40 एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहे हैं. तो ये सारे लूप बार बार चलाने से बेटर है कि तुम एक फंक्शन में चला दो और इस फंक्शन को जहां पर तुमको 40 एस्टेरिस्क प्रिंट करने हैं वहां पर इस फंक्शन को कॉल कर लो. When you will call this function, it will produce and provide you the 40 asterisks. Sir, is this possible? Sir, is it possible? Yes. जल्दी से इसको रिमूव करो एंड रिमूव करने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल कर लो? वो फंक्शन कॉल करो जो तुमको 40 एस्टेरिस्क प्रिंट करके दे रहा है. तो which function is providing the 40 asterisks? Can you please tell? Process. Can you please tell? Can you please tell? Process. Mr. Mirza Jafar, PROC. I am calling. तो पूरा लूप हटकर वहां पर एक वर्ड आ गया. I have eliminated the complete code of for loop और उसकी जगह पे क्या आ गया? उसकी जगह पे क्या आ गया? एक वर्ड. और इस वर्ड के पीछे क्या है? नो नो, यू आर नॉट गेटिंग. इस वर्ड के पीछे क्या है? What is the behind this word? इस वर्ड के पीछे सर लूप. इस वर्ड के पीछे पूरा एक फॉर का लूप है जो रन कर रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट इट इज रनिंग. इट इज रनिंग. ओके, अच्छा अब रुको सर, यहाँ पे क्या करेंगे सर? इंस्टेड ऑफ दिस जल्दी से इसको रिमूव करो एंड इन प्लेस ऑफ दिस जस्ट अगेन कॉल प्रोसेस फंक्शन. अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? इसको एक सेट बना लो. सेट वाइज काम कर रहे हैं. और जापान के नीचे भी जल्दी से लूप को रिमूव करो
और लूप को रिमूव करने के बाद प्रोसेस और सर इसको भी कर दें, हाँ इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको नहीं सेमीकोलन रह गया। कहाँ पे? अच्छा प्रोसेस में, ठीक है अभी लगा रहे हैं सर सेमीकोलन हाँ लगा रहे हैं यहाँ पर semicolon is there and let me clear the screen. Now I am changing my code with process. Understand? Now my line of code is 39 और पहले line of code था 54. अंडरस्टैंड? और ये 39 नहीं है, ये एक्चुअली है 39 माइनस 5 कितना होता है? 39 माइनस 5 कितना होता है? 34 है एक्चुअली ये, क्योंकि बीच में कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी तो हैं, वो सब भी तो हमने जोड़ लिए, ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से, सर आपने ये रिप्लेसमेंट तो कर दिया, बट सर आउटपुट वही आना चाहिए जो पहले आ रहा था, तभी हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, otherwise it will be difficult for me to accept this method. Can you please confirm? Can you please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Same output is coming? Yes, sir. Great. But ये उससे far better है, इसकी स्पीड, इसकी फंक्शनैलिटी सब कुछ बहुत बेटर है। अच्छा एक चीज मैं देख रहा हूँ, why this is happening actually, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है सही, परफेक्ट, ठीक है। अब इसका ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ड्राई रन, और मैं ड्राई रन करूंगा इसका ड्राई रन करने के लिए हमें यहाँ नहीं हो पाएगा इसका ड्राई रन, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इसका ड्राई रन। समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन, सर आप कितनी देर, हाँ मैं एक्चुअली आज ज्यादा देर की क्लास नहीं लूंगा, हार्डली 5 मिनट और, क्योंकि जिस दिन फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है और एग्जाम्पल आता है उस दिन ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होती है। या ओ या सर मैम बोल रही थी कि क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा पहले, करना पड़ेगा, फिर हमने method call अभी करेंगे, ठीक है अभी करेंगे, बताते हैं अभी, ठीक है अभी बताते हैं, ठीक है। मैंने ये कहा कि आई हैव कंप्लीटेड द फंक्शन, मैंने नहीं कहा, अभी तो हमारा नो फंक्शन सर, ठीक है, अभी तो फंक्शन स्टार्ट हुआ, अभी हम देखो इसको ले कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। सर तो देखो सर दिस इज, हाँ यस टेल मी दिव्यांश। सर जैसे कि क्या नाम है, आपने सभी कंट्रियों के नाम लिखे, अगर कोई यूजर चाहे कि उसको अपनी और कंट्री ऐड करनी है उसमें आउटपुट में, तो फिर कैसे करेंगे? लूप ऐड करा लेंगे, लूप चला लेंगे, लूप चला देंगे, ओके सर, अभी चला देंगे। अभी यूजर से हम पूछेंगे हाउ मेनी कंट्रीज यू वांट टू ऐड, हम उससे ले लेंगे चॉइस n और हम 1 से लेकर n तक लूप चलाएंगे और उसकी कंट्री इनपुट कराएंगे और उसके बाद अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे। यू वांट टू सी दैट सिनेरियो? यस सर। देखना चाहते हो? ठीक है, लेकिन Yes. वो हमारा 3rd लेवल पर आएगा, अभी हमारा 1st लेवल चल रहा है और 2nd लेवल कुछ और है, तो पहले हम 2nd लेवल कवर कर लें फिर 3rd लेवल पे आएगा, ठीक है ओके। तो अब देखो 2nd लेवल क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब होता है इफ देयर इज अ स्टैटिक फंक्शन सो इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली, इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली, ये डायरेक्ट कॉल हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली और डायरेक्टली कॉल हो रहा है, इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉल, अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉल विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। अच्छा एक बात बताओ, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉलेज है और इस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं और तुम भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, यू आर सेम कॉलेज स्टूडेंट सैन फ्रांसी, ठीक है, तो तुम भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो और ये भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट है, तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटी यू कैन कॉल, डायरेक्ट कॉल कर सकते, डायरेक्ट कॉलिंग इज अलाउड,
डायरेक्ट कॉलिंग इज अलाउड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, देयर विल बी सम मेथड्स और प्रोविजन। अगर हम किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में इनवाइट कर रहे हैं तो फिर हमको कुछ स्पेसिफिक परमिशंस और स्पेसिफिक रूल्स की जरूरत पड़ेगी, होगा ना ऐसा? वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम यस सर। प्रिंसिपल, वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कि उनका कोई एग्जाम तो नहीं चल रहा। बट अगर हमें अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बुलाना है 15 अगस्त में तो जस्ट कॉल इट, दे विल बी कम। ओके, सो अगर हम वाइड मेन से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 3 साल इस लाइन को तुम फेस करोगे। अगर हम मेन से, और मेन हमारा होता है स्टैटिक, मेन इज स्टैटिक, वाइड मेन इज स्टैटिक। अगर हम किसी स्टैटिक फंक्शन से किसी स्टैटिक फंक्शन को कॉल करते हैं, माय मेन इज स्टैटिक एंड वाइड प्रोसेस इज आल्सो स्टैटिक, तो स्टैटिक से जब हम किसी स्टैटिक को कॉल करते हैं देन डायरेक्ट कॉल इज अलाउड, देन डायरेक्ट कॉल इज अलाउड। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज रिप्लाई फास्ट? Yes, sir. Direct call. यस सर। Direct call is allowed. अलाउड। अलाउड। हाँ, होगा ना, कई दिन से क्लास नहीं हो जाए। ओके, और अगर हम स्टैटिक हटा दें, अब ये बन गया नॉन स्टैटिक। क्या बन गया? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक is not directly allowed, is not directly allowed, is not directly allowed। अब अलाउड नहीं है भाई। अगर मैं अपने कॉलेज का प्रिंसिपल हूं तो मैं कल को अगर किसी दूसरे कॉलेज के सीएमएस या लामाटीनियर के स्टूडेंट को कॉल करूं कि आज आप मेरे स्कूल में आ जाइए, तो नहीं आएंगे, नो डायरेक्ट अलाउड। सर हाउ कैन वी कम इन योर स्कूल, हमारा कल सेशन है, हमें अपने पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आई कैन कम। ओके, नाउ कंपाइल इट, सी एरर इज कमिंग। और ये जो लाइन लिखी है ना, वो वही लाइन है जो मैंने आपको समझाई। यू आर कॉलिंग द नॉन स्टैटिक मेथड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes. यस सर। I want to call. What? I want to call. अगर वो नॉन स्टैटिक है तब भी हम कॉल करना चाहते हैं, अगर वो दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट है तब भी हम उसको अपने प्रीमाइसेस में इनवाइट करना चाहते हैं, then take a permission. Then take a permission. तो how to take a permission? Sir, talk to my principal. How to take permission? Permission here. यार आज मैं थोड़ा अंधेरे कमरे में बैठा हूं। Here permission means बहुत कॉस्टली वर्ड यूज करने जा रहे हैं। Here permission means creating the object. Understand? Yes, sir. Understand? अच्छा एक बात और बता दो, यस सर। एक बात और बता दो। I want to invite CMS student. Can I take the permission from San Francisco principal? नो सर। Tell me. नो सर। मैंने कहा this is a subject of intelligent people. Then how to take? किससे लेनी होगी परमिशन? आपके as a guardian, हम आपके बेटे को बाहर ले जाना चाहते हैं तो obviously I have to take the permission from you only ना, ठीक है? तो ये बताओ कि परमिशन किससे लेनी होगी? ये फंक्शन किस क्लास के अंडर में आ रहा है? फंक्शन डेमो, तो फंक्शन डेमो की परमिशन चाहिए होगी। अंडरस्टैंड? वेट, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा? ऑब्जेक्ट उसी क्लास का बनेगा फंक्शन डेमो जिसके अंडर में
वो प्रोसेस फंक्शन। तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखना। फंक्शन क्लास नेम, आई एम टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द फंक्शन डेमो, ठीक है। और उसके बाद obj इज इक्वल टू न्यू फंक्शन। दिस इज अ परमिशन, दिस इज अ रिटन परमिशन। अब इस परमिशन को दिखाकर या इस परमिशन के थ्रू हम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यस, अब जहां जहां पर आपने प्रोसेस लिखा है उससे पहले आप obj जरूर लगाइए, क्योंकि obj आपकी परमिशन है उस फंक्शन को एक्सेस करने की। अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? obj लगाना Yes, sir. Yes, कंपल्सरी। sir. विदाउट obj सर अगर स्टैटिक होगा तो सर अपने आप लग जाएगा OBJ। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं पहले स्टैटिक बताता हूं, फिर नॉन स्टैटिक बताता हूं। अंडरस्टैंड? अब देखो सर, बस इस स्टूडेंट को परमिशन नहीं मिली तो सारे स्टूडेंट तो आ जाएंगे, हाँ, बट ये स्टूडेंट नहीं आ पाएगा। देखो कंपाइल करा, यहीं पे एरर आ गई है, इसको परमिशन नहीं है तो ये नहीं जा पाएगा, तो इसको भी परमिशन दे देते हैं, obj डॉट प्रोसेस। अब देखो सर क्या आउटपुट सेम आएगा? आउटपुट सेम आएगा बट अप्रोच बदल गई। आर यू वेटिंग? Yes, sir. Now you are calling all the function by object because they are non-static. So sir, what are the closing statement of today's lecture? Can you please tell me? Yes, the closing Sir, statement, दो क्वेश्चन पूछने हैं। closing statement of today's lecture। पहले मैं लिख लूं अपनी बात। closing lectures of today's statement, closing statement। static function, कॉपी अगर नहीं बना रहे तो biggest loss। static function can be direct call from main because main is also static, and from static to static direct call is allowed, understand? Okay. But sir, non-static function can't non-static function can't call direct from main. So if we want to call non-static from static, then we need to क्यों लिखवाया MCQ, then we need to create the Object. of that particular class, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास। उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंतर्गत समझते हो, जिसके अंडर में वो फंक्शन आ रहा है, ठीक है। वेरी कॉस्टली लाइन, वेरी कॉस्टली। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम एब्सोल्युटली डन एंड द रिकॉर्डिंग इज okay. So we should continue the function session. So in the last class we have started the function and hope कि आपने उसको थोड़ा रिवाइज भी किया होगा, थोड़ा सा देखा था रिवीजन। सी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हमने बताए थे ये। अच्छा, अब आज का टॉपिक हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हायरार्की ऑफ द फंक्शन। Which function should be called first, main or any other user defined function? एक बात का यहां पर ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, कि हम जितने भी फंक्शंस क्रिएट कर लें, ओके, 1 मिनट, लेट मी ओपन द BlueJ, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां पर थोड़ा समझाना है प्रैक्टिकली। सी क्लास का नाम क्या था? Function demo.
जस्ट 1 मिनट, मैं चार्जिंग सेट कर लूं, चार्जिंग नहीं सेट है सर ऊपर ही है। नहीं, मोबाइल का चार्जर लूंगा। See, where is function demo? Yeah, this one. Okay. Now, the very important point over here, कि this is my main function. हम main function के ऊपर अपने user defined function बनाए या main के नीचे बनाए, it doesn't matter. Position doesn't matter. But always execution will start from the main only. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है। इफ आई हैव क्रिएटेड द अदर फंक्शंस, तो इस फंक्शन को या इसके जैसे और फंक्शंस को हमें मेन से ही कॉल करना होगा। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा पहले कॉल हो जाए, तो दिस इज नॉट द फ्लो ऑफ जावा। जावा का फ्लो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फंक्शन विल बी कॉल्ड, देन फ्रॉम मेन यू कैन कॉल अदर फंक्शन, राइट? Do you understand? Can you please confirm? Yes, sir. And who will call the first main function? This is also very important. So JVM, Java Virtual Machine, always call and coordinate with the main. It doesn't have any information regarding the user defined function. इसके पास सिर्फ एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो है मेन। तो मेन ही सबसे पहले अप्रोच होता है JVM। JVM सबसे पहले मेन को अप्रोच करता है। Okay, this point is clear. Okay. अब देखो ध्यान से, हम जब भी अपने प्रोग्राम के स्टैंडर्ड में फंक्शंस यूज करते हैं, तो हमेशा हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है बॉटम टू अप। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फंक्शंस हैं यूजर डिफाइंड, वो हमेशा ऊपर रहेंगे और मेन हमेशा नीचे रहेगा। यहां से लेकर क्लास 12 तक बात हो रही है। All the user defined function will be above the main. They can be right below the main, but as per standard and flow, they should be above the main. Point to be noted. Point note हो गया आपका? समझ में आया? This point is clear? सर फिर से रिपीट कर दिए। मैंने बोला कि user defined function हमेशा main से ऊपर रहेंगे। मतलब पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन, बाद में मेन। मेन सबसे लास्ट में रहेगा। इज इट क्लियर? जैसा यहाँ पे है, मतलब जैसा इस फंक्शन, जैसा इस प्रोग्राम में है, यू कैन सी दिस प्रोग्राम एक्चुअली, जैसा यहाँ पे है कि फंक्शंस ऊपर हैं और मेन नीचे। ओके, ऐसे ही हमको अप्रोच रखना है। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, तुम लोग जरा कुछ ड्रॉ करो, जस्ट ड्रॉ समथिंग ऑन स्क्रीन। करो, ड्रॉ करो। कुछ नए फीचर्स इसमें इंक्लूड हुए कि स्टूडेंट भी किसी पॉइंट को ड्रॉ करके पूछ सकता है। कर रहे हो ड्रॉ? कुछ भी, कोई भी एक लाइन कुछ भी ड्रॉ करो कहीं पे। एक आदमी कोई, ये यूसुफ ने किया, कर दिया, अर्नव ने किया, ये मरियम ने किया। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर ऑल? ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कुछ पूछना हो कि सर आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस लाइन, तुम्हारा नाम भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, हमने इस डिजाइन को फॉलो किया था। Now today I want to change some line of code. आज हमें ये डिजाइन फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको चाहिए 40 एस्ट्रिक्स, देन चाहिए हमको 60 एस्ट्रिक्स, देन चाहिए हमको 5 एस्ट्रिक्स, देन चाहिए हमको 7। हमने जान के कोई सीक्वेंस नहीं रखा ताकि स्टूडेंट ये ना सोचें कि कोई सीक्वेंस है। Now the asterisks are not fixed. After the India we need 40 asterisks. It's a different requirement. अमेरिका के पास 60 asterisks.
जापान के बाद 5 एस्ट्रिक एंड IACCS के बाद 7 एस्ट्रिक। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 1 minute. This is very important example. ये है कस्टमर और ये है शॉपकीपर। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। कस्टमर ने, मैंने कहा मैं तुमको कॉल करूं, बस मेरा कॉल जाना है, तुम समझ जाना कि मुझको 40 लैपटॉप चाहिए। जैसा पहले एग्जाम्पल था, तो जैसे ही मैं इसको कॉल करता था ये मुझे 40 लैपटॉप प्रोवाइड कर देता था। ठीक है, हमने कहा अब हम इस डील को चेंज करेंगे। नाउ एवरी टाइम आई डोंट वांट 40 लैपटॉप, मैं तुमको कॉल करके बताऊंगा, कॉल के साथ मैं तुमको रिक्वायरमेंट दूंगा, तुम उतने लैपटॉप मुझे भेजना। उसने कहा ये सर, ये तो सर बहुत अच्छी बात है। अब मैंने दोबारा कॉल किया और उसको 7 भेजा। तो अब जो मेरी कॉल में रिक्वायरमेंट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग शॉपकीपर विल प्रोवाइड द लैपटॉप। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। पहले क्या था, Yes, sir. मैं कॉल करूंगा विदाउट एनी रिक्वायरमेंट यू हैव टू सेंड 40 लैपटॉप, बट दिस टाइम आई एम चेंजिंग द डीलिंग प्रोसीजर। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि इसी प्रोग्राम में सी, ये देखो एक चीज और देखो। अब यहां पर एक्चुअली आफ्टर द इंडिया हाउ मेनी एस्ट्रिक्स वी नीड? हाउ मेनी एस्ट्रिक्स वी नीड? 40. 40। तो 40. के अंदर हम 40 मेंशन कर देंगे। This is my requirement of the asterisk after the India. This is called, in technical language, this is called, अगर कॉपी साथ में नहीं रख रहे हो, पेन तुम्हारे पास नहीं है, तो you will never understand. इसको कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर। तो at the time of calling the function, we can send our requirement also as a parameter. Are you getting my point? So after America, how many asterisks we need? How many asterisks we need? 60. 60. 60. Yes, sir. यस सर। After Japan, how many asterisks are needed? 5। Very good. सर लूप तो 40 का चल रहा है। ABC के बाद, चलो ABC के बाद हम 10 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। Yes, sir. और Yes, IACC के बाद 7। 7. ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो, यूं समझ लो, Yes, sir. यूं समझ लो, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। ये एक पर्सन है और पर्सन ने कॉल किया और कॉल के साथ अपनी रिक्वायरमेंट भी बता दी। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अदर एंड पर शॉपकीपर है। शॉपकीपर 2 चीजें रिसीव करेगा, एक तो कॉल भी रिसीव करेगा और एक रिक्वायरमेंट भी रिसीव करेगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि 2 चीजें आ रही, कॉल भी आ रही है और रिक्वायरमेंट भी आ रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। Yes, sir. तो अभी Yes, sir. क्या है, अभी फंक्शन केवल कॉल रिसीव कर रहा था बट रिक्वायरमेंट रिसीव नहीं कर रहा था। अब इसने क्या किया, यहां पर एक कैसी वैल्यू आ रही है, वहां से हम पास कर रहे हैं INT वैल्यू। देखो देखो देखो, INT वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेक वन इंटीजर वेरिएबल हियर। तो जो 10, 20, 60 मैं पास कर रहा हूं वो इस वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो लूप हम 40 तक चला रहे थे, अब उसे हम n तक चलाएंगे। ठीक है, और n का मतलब है कि जब n की वैल्यू 40 होगी तो लूप 40 तक, जब n की वैल्यू 60 होगी तो लूप 60 तक, जब n की वैल्यू 5 होगी तो लूप 5 तक। सर कैन यू प्लीज रन दिस कोड? यस यस। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना,
or slightly the program is modified. This is the modified version of the program. Sir, why you can say that it is modified? It is more better than previous one. अगर तुमको 40 एस्ट्रिक 40 एस्ट्रिक चाहिए तो जस्ट सिंपल पास 40, और अगर तुमको ज्यादा एस्ट्रिक चाहिए तो ज्यादा पास कर लो, और तुमको अगर कम एस्ट्रिक चाहिए तो यू कैन पास द लेस एस्ट्रिक. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. सी, एक्चुअली दिक्कत ये है कि आई जस्ट वांट टू कॉपी एंड सी. एक ही पेज पर आ जाइए तो ज्यादा अच्छा है. सिर्फ ड्राई रन करने के लिए यहाँ पे ला रहे हैं. ध्यान से देखना भैया. हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना. वेट, तुमको समझाने के लिए ये सब किया जा रहा है. 1 मिनट. सी, अब बहुत ध्यान से देखना. लेट मी क्लियर आउट दिस ड्राइंग. सी, हमने प्रोसेस नाम का फंक्शन कॉल किया and we are passing 40. This 40 will be stored in n. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट वैल्यू ऑफ n will be 40. now my loop will be executed from 1 to n and the current value of n is 40. Understand? तो ये लूप हमारा 1 से 40 तक चलेगा and 40 asterisks will be print. Means shopkeeper received the requirement of 40 laptop and he has dispatched the 40 laptop. Understand? Can you please confirm? Can you please confirm? Yes. Great. अब रुक जाओ, कोई कहीं जाएगा नहीं. Yes. कोई कहीं जाएगा नहीं, रुक जाओ. By this someone is calling यार. ध्यान देना, ध्यान देना. ध्यान देना. Next day, India is my first customer and America is my second customer. तो second customer ने हमको अप्रोच किया. Second customer has approached me and I want to put a green color for second. दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, लिटिल कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा और हम नीचे कर लेते हैं. That's fine. अब दिखाई दे रहा है? प्लीज. तो अब हम यस सर. सेकेंड टाइम हमने प्रोसेस को कॉल किया एंड दिस टाइम आई एम पासिंग 60. तो ये 60 किस में जाएगा? n में. बट सर n में तो 40 था, वो ओवरराइट हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 60. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर. अब जो n की वैल्यू है वो 60 है, तो माई लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 to 60 and after America 60 asterisks will be printed. Are you getting my point? Any doubt? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Any doubt? देखो, कुछ लोग यस सर कहते हैं, जो बाकी के लोग हों वो इस बात से बिल्कुल भी इस बात से हेजिटेट ना किया करो कि किसी ने यस सर कह दिया तो मुझे भी यस सर कहना है. नहीं, आपको यस सर तब कहना है जब आपकी समझ में आए. वो यस सर तब कह रहे हैं जब उनकी समझ में आया. So if you have any problem, if you need some clarification more, you can directly, I will immediately tell. So can you please tell me if you have any problem? I will explain. ठीक है, नाफे, मरियम, No, sir. मिर्जा जाफर. Yes, sir. Sir, I understood. Understood. Okay. Karan,
Karan, are you there? यस सर। नहीं समझे? नहीं सर, समझ गए। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और कोई वैल्यू पास करते हैं, जैसे हम यहां से, एक मिनट, लेट मी टेक अनदर पेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये और ये। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और वैल्यू पास करते हैं लाइक 40 60, तो इनको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर। इसको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर। और जहां पर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और डिफाइन करते समय जो वेरिएबल हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं लाइक n, उसको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर। Understand? At the time of calling the function, please note down, at the time of calling the function, the value which we pass is called actual parameter. At the time of defining the function, the variable which we declare are called formal parameter. Sir, please repeat. Yeah, good. Sir, repeat बोल दे। अच्छा, repeat करें। सर टेक्स्ट पैड पे लिख दीजिए सर, नोट पैड पे। At the time of calling the function, the value which we passed is called actual parameter, like 40, like 60. और इसको पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लेना और इसको अपनी कॉपी पर ऐसे ही लिखना, क्योंकि सब लेबलिंग वाइज लिखा हुआ है ना, एरोज बने हुए हैं, वैल्यू ओवरराइट हो रही है, तो प्लीज नोट डाउन। At the time of calling the function, the value which we passed is called actual parameter. Sir, formal की भी बताइए definition. At the time of defining the function, जहां पर हम function define करते हैं, the variable which we mentioned is called formal parameter. Is called formal parameter. Now we are working on second level. First level was non-parameterized. Okay, done. Okay, जहां रुकना है वहां खुद ही रुकते हैं। और 1 मिनट, एक मिनट, मैं भेज रहा हूं आपके ग्रुप में। कंप्यूटर कोचिंग ऑफलाइन, प्लीज, अभी आपके ग्रुप में है, इसे आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट लेवल। So जो default value जैसे पहले हम पैटर्न बनाया था, इसमें सब में 40-40 एस्टेरिस्क करनी थी, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड। फर्स्ट लेवल था हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, मतलब नो पैरामीटर will be mentioned in function. सेकेंड लेवल था हमारा पैरामीटराइज्ड, ठीक है, some parameter will be mentioned in function.
नाउ अब इसी सेकंड लेवल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ना। अगर ये एग्जांपल आपकी समझ में आ गया थर्ड वाला, तो फिर आप कोई भी प्रोग्राम कर लेंगे, कोई भी, मतलब 60% यू विल अंडरस्टैंड द फंक्शन। 60%, बहुत ध्यान से देखना, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इंडिया के बाद 40 एस्टेक चाहिए, अमेरिका के बाद 60 प्लस चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो, जापान के बाद 5 माइनस चाहिए, ओके, एंड ICS के बाद हमको फ्लैश चाहिए 7, स्लैश। अंडरस्टैंड? यस सर। अब क्या हो गया अगर हम कस्टमर और डीलर के कन्वर्सेशन की बात करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर एंड डीलर। इसने कहा देखो भैया ऐसा है कि हम तुमको रिक्वायरमेंट तो बता रहे हैं कि हमको 40 लैपटॉप चाहिए, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कौन से ब्रांड के चाहिए। आर यू गेटिंग? 40 लैपटॉप HP, 60 लैपटॉप डेल, 5 लैपटॉप लेनोवो, 7 लैपटॉप एप्पल। Are you getting my point? So I am telling you the quantity as well as I am telling you the brand. Clear? This point is clear? यस सर। Okay. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute please. First वाले example में it was a blank call. Blank call का मतलब आपको 40 लैपटॉप ही भेजना है। कौन से भेज रहे हो? वो एक फिक्स लैपटॉप। ये थी हमारी फर्स्ट डील। सेकेंड डील थी लैपटॉप भेजना एज पर नीड, लेकिन ब्रांड एक ही रहेगा। आई एम ओनली कंफर्टेबल विथ HP लैपटॉप, डेट्स ओके। थर्ड में डील और मॉडिफाइड हो गई। यू जस्ट सेंड द रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, ऑल्सो द ब्रांड, because every time we don't need one brand. आप पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? Now ask the question please. Yusuf? सर यस सर बोला था हमने, क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, क्वेश्चन नहीं पूछना। नहीं सर। Okay, anybody want to ask question? Hey, don't worry about implementation, वो हम कर लेंगे, अभी हम कर लेंगे। क्वेश्चन अंडरस्टूड है? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? अच्छा, Yes, sir. यस सर। इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्या तीनों एग्जाम्पल एक जैसे हैं या तीनों में डिफरेंस है? सर डिफरेंस सर डिफरेंस है। डिफरेंस है। अब चलो यहाँ आ जाओ। सर I need 20, I need 40। तो यहाँ पर ये तो नहीं मेंशन हुआ कि 40 क्या 40 क्या, तो कॉमा सिंगल कोट्स में मेंशन कर देंगे एस्टेरिस्क। Now this is my requirement and this is my brand. Can you please confirm? Yes, After America 60 watt plus, and after Japan 5 watt माइनस। तो माइनस। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जितनी चीजें क्लाइंट से डीलर की तरफ आती है उतनी चीजें डीलर को रिसीव करनी पड़ती है। कॉल आ रही है तो कॉल रिसीव करेगा, रिक्वायरमेंट आ रही है तो रिक्वायरमेंट रिसीव करेगा, ब्रांड आ रहा है तो ब्रांड भी रिसीव करेगा, तो तीनों चीजें रिसीव करेगा।
नाउ द थर्ड पॉइंट, कैन यू प्लीज मेंशन थर्ड पॉइंट? एबीसी के बाद हम क्या कर लें, कॉमा, एबीसी के बाद हम डॉलर साइन कर लेते हैं, हाँ? कोई दिक्कत नहीं। और 7 व्हाट, 7 स्लैशेस, अंडरस्टैंड? अब हम यहां से 2 चीजें पास कर रहे हैं और फंक्शन केवल एक चीज रिसीव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अनकम्पैटिबिलिटी। अभी अगर हम कंपाइल कर देंगे Yes. एरर, सी एरर आ गई, सी सी सी, देखो वही एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट जो तुमको अभी लिखवाया था ना, जो तुमको अभी लिखवाया था हमने, एक्चुअल एंड फॉर्मल लिस्ट डिफर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़े से भी आप इंटेलिजेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हैं तो सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिए। अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो एरर समझना जानता हो, जिस पर मैंने अंडरलाइन किया है उसको देखो क्या लिखा है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर। मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूं इस पॉइंट पर, एम्फसाइज कर रहा हूं, एक्चुअल एंड फॉर्मल लिस्ट डिफर। इसका मतलब क्या है, जितना एक्चुअल आ रहा है, जितना एक्चुअल आप पास कर रहे हैं, उतना उधर सर वो फॉर्मल में नहीं है। है, नहीं समझे? सर समझ गए। हाँ, जितना एक्चुअल आप पास कर रहे हैं उतना उधर फॉर्मल नहीं है। मतलब आई एम गिविंग यू द पेन एंड पेपर, बट यू आर रिसीविंग ओनली पेन नॉट पेपर। If I am giving you pen and paper together, then you have to receive pen and paper together. क्यों भैया, समझ रहे हो? जैसे हमारे फादर हमको देते हैं और एक अमाउंट, तो हमने लिस्ट तो ले ली, अमाउंट नहीं लिया, तो सामान कैसे लाएंगे? या लिस्ट ले ली, अमाउंट नहीं लिया, या अमाउंट ले लिया, लिस्ट नहीं ली? नो, लिस्ट एंड अमाउंट टुगेदर। अब देखो 2 points are going, number 1 and number 2. Can you please understand? Can you please Yes, sir. understand? Yes, And sir. one यस सर। is INT. Please, क्लास 12th वालों को भी जल्दी समझ में नहीं आता जो आपने इतने जल्दी समझ लिया। मेरा हाई स्कूल का बैच बहुत जबरदस्त है। And this one is char. सर ये कैसे आपने कह दिया ये char है? Nobody can say. सर सिंगल कोट्स में। पूरा स्ट्रिंग सिंगल कोड में। पूरा स्ट्रिंग कंप्लीटेड। ओके, अब इंटीजर एंड कैर आर पासिंग, तो उधर होल्ड करने के लिए देखो इसको लेके जा रहे हैं हम ऊपर, उसको होल्ड करने के लिए वन मोर पैरामीटर इज नीडेड, दैट इज कैर। नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। यस सर। यस सर। एरर नहीं आएगी। सर प्रिंट में भी तो सर एक तक ये। हाँ, प्रिंट में भी तो चेंज करना पड़ेगा। इसका तो मतलब ये हुआ कि डीलर ने ब्रांड समझ लिया लेकिन फिर भी वो एक ही लैपटॉप भेज रहा है। तो हियर, यस सर। हियर what should we write? What should we write? X. Absolutely fine. Absolutely fine. So this one is the quantity and this one is the display character. Can you please confirm? See, there is no error. There is no error. And let me run this code. And requirement is absolutely change. Requirement is absolutely change. Are you getting my point? सर अगर सर रिक्वायरमेंट इनपुट करानी हो तो अभी आ रहे हैं उस पर भी, अभी बेटा आ रहे हैं उस पर। थोड़ा सा जो चल रहा है उसको पहले समझने की कोशिश करो। The topic which is running has its own importance. Can you please confirm? यस सर। यस सर। Can you please Yes, sir. confirm? Understand? Should I send in your note karo? Should I send in your group or यस सर। यस सर। नोट वोट कर रहे हो ना बराबर? Second example. Sir,
want to make it generalize. सर कितनी देर में क्लास ओवर होगी? अभी तो शुरू हुई है यार, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक इट जनरलाइज, ठीक है। तो कहीं जाना है क्या? देखो क्लास चल, 1 मिनट। सी, so do you understand the second scenario? Next scenario, anybody have any problem in this? अच्छा, okay. See, clear? पहले तो anybody want to ask any question? कोई आदमी कुछ पूछ? अगर इसमें हाँ, yes. 40 मार्क्स प्रिंट कराने थे, अगर उसकी जगह 40 बार 60 प्रिंट कराना होता तो 2 बार इंटीजर लिख के वेरिएबल लेते या फिर एक ही बार में दोनों को डिफाइन करते? क्या चाहिए? 40 आउटपुट कैसा चाहिए? जैसे 40 बार कोई इंटीजर चाहिए होता था कि 60 प्रिंट कराना हो। 40 एस्ट्रिक चाहिए? नहीं, अगर 40 बार मतलब किसी कैरेक्टर की जगह कोई इंटीजर प्रिंट कराना हो। हाँ, इंटीजर को आप एज ए कैरेक्टर पास कर दो, लाइक 1 पास कर दो, तो 40 टाइम 1 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पास कर दो, क्योंकि सिंगल। अगर इंटीजर 40 प्रिंट कराना हो तो? अभी देखो, पहले बात को समझो, वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम स्मॉल मॉडिफिकेशन पे काम करना चाहते हैं, छोटा मॉडिफिकेशन, ज्यादा ना चेंज करना पड़े, तो ये लो, हो गया। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? देखने वाले को थोड़ी लगेगा कि ये कैरेक्टर है या इंटीजर है, देखने वाले को तो ये लगेगा कि न्यूमेरिक है। हाँ, बट यू वांट टू चेंज। अगर तुम प्योरली इंटीजर पास करना चाहते हो तो फिर एक काम करना पड़ेगा, 1 2, सब जगह चेंज करना पड़ेगा तुमको, 4 और 5 और यहाँ पर 6 कर लो। अब ये दोनों इंटीजर हो गए। अब दोनों इंटीजर हो गए तो इसका मतलब बोथ द पैरामीटर शुड बी इंटीजर। दैट्स फाइन। तुम बताओ खाली करना क्या है। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अंडरस्टैंड? कैन यू? हाँ, यस। सर अगर इंटीजर भी प्रिंट करना और कैरेक्टर, कहीं पर इंटीजर कहीं पर कैरेक्टर नहीं सर, कहीं पर इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करनी हो, कहीं पर कैरेक्टर टाइप वैल्यू। पैरामीटर जो हैं एक ही तरह के एक्सेप्ट होंगे, या तो दोनों इंटीजर या एक इंटीजर एक कैरेक्टर। मतलब हर फंक्शन कॉल के लिए पैरामीटर्स अलग अलग नहीं हो सकते, फिर उसके लिए हमें कंडीशंस वगैरह देनी पड़ेंगे अंदर, ठीक है सर? ठीक है सर सर जैसे कि क्या नाम है, इंडिया के, सॉरी सर जैसे इंडिया के नीचे 40 लिखा हुआ है और अमेरिका को भी 40 उससे करना हो, 42 से वो करना हो मल्टीप्लाई, नहीं मतलब मल्टीप्लाई नहीं सर, जैसे कि 40/2 वो लिखना हो नीचे, तो उसमें 40 लिखने की जरूरत है या फिर वो इंडिया के 40 से ही वो हो जाएगा? नहीं, उसके लिए अलग, वो दोनों अलग क्लाइंट्स है ना। जैसे मान लो तुम लैपटॉप लेने गए, तुम वापस आ गए, अब मैं जा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा ना उसको कि मुझे भी लैपटॉप चाहिए। ओके सर। नहीं सर, आपने कहा था वो जैसे पहले 40 था और फिर उसके बाद आपने जब 60 किया तो आपने कहा था वो ओवरराइट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो 60 से वो होने लग जाएगा, लूप चल जाएगा। तो अगर 40 से लिख दे तो 40 से नहीं चल पाएंगे दोनों? नहीं, क्योंकि जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल करने के टाइम पर हमको रिक्वायरमेंट पास करनी पड़ती है। अगर फंक्शन पैरामीटराइज है तो वी हैव टू पास द वैल्यू, बिना वैल्यू पास किए नहीं हो सकता। ओके, प्रीवियस वैल्यू जो है वो आगे के दूसरे फंक्शन में यूज नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है ना। अब देखो, हमें इसको यूजर चॉइस पे बनाना है, लेकिन यूजर चॉइस तभी समझ में आएगी जब तुम सर एक वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर 41
फिर उसके बाद 42 हो गए रिपीट। अब 41 भी प्रिंट करेगा और अमेरिका के बाद 42 भी प्रिंट करेगा, सेम। देखो दोनों का लेवल एक ही बराबर और है, सर नीचे सर 2 की जगह भी 1 कर देंगे तब भी हो जाएगा। तब भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है बोथ द क्लाइंट हैव द सेम रिक्वायरमेंट। भाई तुमको एचपी का लैपटॉप चाहिए, मुझे भी चाहिए। सर दूसरे क्लास में INTI लेना इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? सर दूसरे क्लास में आपने डिफाइन किया ना INTI। नहीं, ये तो पहले वाला एग्जाम्पल था, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो पहले कुछ पढ़ रहे होंगे, उसी को ओवरराइट चेंज कर दिया ना, इसलिए दैट इज नॉट नीडेड। अंडरस्टैंड? यस। क्लियर? मैंने ये एग्जाम्पल तुमको भेज दिया है ग्रुप में। जी सर भेज दिया। भेज दें? अरे यार भेज तो दिया है, ठीक है। अच्छा भेज दिया है, भेज दिया है। अच्छा भेज दिया। अब यहाँ पर हमको करना क्या है? करना ये है मुझे कि यूजर चॉइस पे बनाना है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर ये सब स्टोरी डिलीट करो एंड टेक अ स्कैनर। एंड system.in। सबसे पहले तो हम n लेंगे और एक q लेंगे क्वांटिटी, और n की जगह पर हम लेंगे लिमिट, ध्यान देना, और स्ट्रिंग में ले लेंगे हम क्या, स्ट्रिंग में हम ले लेंगे सी नेम, कंट्री नेम। अब देखो वो सिचुएशन आ गई, कौन सी? बफर वाली, पढ़ाया था ना बफर। इंटर लिमिट मतलब कितनी कंट्रीज के बाद आप एस्ट्रिक्ट चाहते हैं, मतलब कितनी कंट्रीज होनी चाहिए। जैसे वहां पर था ना इंडिया, अमेरिका, जापान, ABC, वैसे कितनी? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बस ये समझ लिया, समझ लो 80% तक तुम पहुंच गए, तभी भी 20% बचेगा, वो बताएंगे क्या है। अब ये हो गया हमारा लिमिट, एंड वन मोर वेरिएबल आई हैव टू स्पेसिफाइड। अब यहाँ तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज होंगी। I less than equal to LMT। Here system.out.print enter country name and C name is equal to enter country name and ob.next line enter display cap। और डिस्प्ले कैप को किस में ले लें? कंट्री नेम, और एक और चीज भी तो चाहिए हमको, क्या? तीन चीजें चाहिए ना, इंटर क्वांटिटी, और क्वांटिटी को ले लेते हैं हम
QTY में। और एक चीज और, इंटर डिस्प्ले कैरेक्टर, और डिस्प्ले कैरेक्टर किस में आना चाहिए? कैर। सर सब लूप में क्यों कर रहा है? 5 बार, 6 बार, 7 बार। अगर हम लूप में नहीं लिखेंगे तो एक कंट्री, एक क्वांटिटी, एक डिस्प्ले कैरेक्टर, बस रुक जाएगा प्रोग्राम। फिर दूसरी कंट्री, दूसरी क्वांटिटी, दूसरा डिस्प्ले कैरेक्टर नहीं आएगा। तीसरी कंट्री, तीसरी क्वांटिटी, तीसरा कैरेक्टर नहीं आएगा। सर क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं? ये था ना एग्जाम्पल में, इंडिया के बाद एस्ट्रिक चाहिए, लेकिन कितने? 40। सर वो तो हम लोगों ने लिमिट में ले लिया ना सर। हाँ, वो लिमिट नहीं सर है, लिमिट में नंबर ऑफ कंट्रीज लिमिट है नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी होंगी, 4, ये है ओके सर, लिमिट। ओके सर, अंडरस्टूड। उस कंट्री के नीचे डिस्प्ले कैरेक्टर कितने होंगे वो क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके, यस सर। ठीक है, जनरलाइज बन रहा है ना। ob.next .char@0। अब इसलिए नहीं ला रहे थे लास्ट क्लास में इस एग्जाम्पल को, क्योंकि मुझे मालूम था ना कि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं पढ़ लेंगे समझ में नहीं है। ये बिल्कुल सही बना है, लेकिन इसको आप कैरेक्स कर दो, क्योंकि एक कैरेक्टर पास करेंगे ना। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। सी obj डॉट फंक्शन का नाम क्या है? प्रोसेस। सबसे पहले क्या पास करेंगे हम? सर प्रोसेस। सबसे पहले पास करेंगे हम, अरे यार, क्वांटिटी और डिस्प्ले कैरेक्टर, क्वांटिटी एंड डिस्प्ले कैरेक्टर। तो क्वांटिटी किस में है? QTY में, और डिस्प्ले कैरेक्टर किस में? X में। और इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ध्यान देना। सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है। यस सर, क्रैक। My voice is cracking. 1 minute, 1 minute. Yes, you all are right. कोई कॉल कर रहा था जिस वजह से क्रैकिंग हो रही थी। आप ठीक है? यस सर। system.out.print cname not ओके, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जस्ट अ मोमेंट, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है। इतना बड़ा एग्जाम्पल वी आर नॉट एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन, बट हम इसको कर लेते हैं। कंपाइलेशन, ओके, सम सेमीकोलन इज मिसिंग। मैं समझाऊंगा इसको। स्कैनर क्लास कम्स अंडर java.util, java.util। Let me compile. Oh, obj is not defined. How come? Okay, ob लिया, नहीं, स्कैनर क्लास उसका तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं हमने, फंक्शन डेमो का। क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के कैसे कॉल होगा? नॉन स्टैटिक है ना। ये सब चीजें क्लियर करके आ रहे हैं। कंपाइल, कैन नॉट फाइंड फंक्शन डेमो। ओके, सॉरी, यहाँ पे भी डेमो। सर डेमो भी तो लगाइए। लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द बफरिंग, क्योंकि पहले इंटीजर आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रही है। स्ट्रिंग। अगर इंटीजर पहले स्ट्रिंग बाद में है तो फिर वो स्किपिंग प्रॉब्लम, याद करो, इनपुट स्किपिंग प्रॉब्लम।
यस सर, बफर क्लियर करना पड़ेगा। होगी, बट अभी दिखा दें, कुछ लोग हो सकता भूल गए हों। इनपुट स्किपिंग प्रॉब्लम, लिमिट कितनी रखी हमने एक कंट्री के लिए, ये देखो स्किप हो गया, कंट्री का नाम पूछे बिना चला गया क्वांटिटी पे, याद है कर हुआ नहीं हुआ? यस सर। इनपुट स्किपिंग प्रॉब्लम वो स्कैनर के साथ होती है, स्कैनर के साथ होती है। तो अब एक काम करो, इसको जावा को रीसेट करो, पूरा तरीका बता रहे हैं प्रैक्टिकली। जावा को रीसेट, वापस ब्रेक हो रही है सर, फिर से क्रैक हो रही है। अब तो नहीं होना चाहिए, अब तो कुछ नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, अब तो कोई कॉल नहीं आ रही है। ओके सब सही हो गई। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। तो फंक्शन डेमो, और यहां पर क्या करेंगे, हाउ टू अवॉइड द इनपुट स्किपिंग प्रॉब्लम, ob.next लाइन, ठीक है, क्लियरिंग द बफर, that's fine. Let me run this code again. Okay, I've taken a 1, country name is India. क्या क्वांटिटी रखना चाहते हैं आप? हम रखना चाहते हैं 40, और डिस्प्ले कैरेक्टर क्या रखना चाहते हैं आप? एस्ट्रिक। कैन यू प्लीज कंफर्म? So please explain input display problem again. इनपुट स्किपिंग प्रॉब्लम, नॉट इनपुट डिस्प्ले प्रॉब्लम। Yes. वो भी है। इनपुट स्किपिंग प्रॉब्लम में तुम नहीं थे आई थिंक ना, कोई बात नहीं, लीव इट, डोंट वरी, ठीक है। अभी तुमने देखा था कुछ प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी? हैव यू सीन दैट प्रॉब्लम? Yes, skip हो गया था। दैट प्रॉब्लम, Country name. व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? सर कंट्री नेम सर इनपुट किए बिना ही सर क्वांटिटी पहुंच गया था सर। तो वो तब आती है प्रॉब्लम कि जब तुम इंटीजर के बाद स्ट्रिंग को इनपुट करो, तो इंटीजर के बाद स्ट्रिंग इनपुट नहीं होती, वो स्किप करके दूसरे पार्ट पे चला जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि इनपुट स्ट्रिंग, इंटीजर के बाद स्ट्रिंग इनपुट हो जाए, उसके लिए हम लोग बफर क्लियर करते हैं। इसका एक मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा तुमको बाद में। अभी हम 2 कंट्री के लिए टेस्ट करते हैं इसको, 2 के लिए। कंट्री नेम इंडिया, क्वांटिटी 40, डिस्प्ले कैरेक्टर प्लस, आ गया। अब देखो दोबारा फिर जब आया, अब ये कहां पे आ रहा है? अब देखो 1 मिनट, एक इंटीजर और आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखो ध्यान से देखो सर, फिर से क्रैक करने लगी। रुक जाओ 1 मिनट। ओके 1 मिनट, पहले इसको हम सही करके चला लें यार, हैं? चला लें भैया इसको 1 मिनट। समटाइम नेटवर्क कंट्रोल इज नॉट इन अवर हैंड है भैया, 1 मिनट इसको चला लें जरा 2 सिटी के लिए। कंट्री नेम इंडिया, क्वांटिटी 5 प्लस कंट्री नेम अमेरिका, क्वांटिटी 10, कैरेक्टर एस्ट्रिक, परफेक्ट। अंडरस्टैंड? कमिंग, आउटपुट इज कमिंग। सर, पहले एक प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट होगा। क्योंकि फंक्शन कॉल हो रहा है ना पहले। देखो इंटर लिमिट का मतलब है कि 2 कंट्रीज आएंगी, इंडिया आया, क्वांटिटी आया, कैरेक्टर आया। फंक्शन अगर एक साथ करना हो तो कैसे करेंगे? फंक्शन कॉल हो रहा है ना बीच में, क्योंकि अगर हम दूसरी इनपुट ले लेंगे तो फिर पहला इनपुट स्किप वो हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। इसके लिए एरे यूज करना पड़ेगा, एरे, और दोनों एरे पढ़ा नहीं है हमने। तो 1 मिनट, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आफ्टर एरे function, after array the function can also be used। तो अगर एक साथ लेना है तो उसके लिए हमको array का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, and we have not started the array, so with some minor limitation we have to accept this output only। Understand?
कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, क्योंकि यस सर। मैंने पढ़ा Yes, नहीं sir. तो इसलिए एक साथ नहीं आ पाएगा। एक साथ लाएंगे तो पहले की वैल्यू ओवरराइट हो जाएंगी, और पहले की वैल्यू ओवरराइट ना हो वही एरे का काम है। डोंट वरी, दिस अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, ओके, बट आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप। ओके, सर बस वो बता दिए एक बार क्यों हो रहा था ऐसा आउटपुट आ रहा था। क्यों वाइज स्किप क्यों हो रही थी, वो मतलब क्रैक क्यों हो रही थी? नहीं सर, ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा था, रीजन बता दिए सर उसका। कैसा आउटपुट यार? सर पहले एक प्रिंट होता उसके बाद फिर वैल्यू मांग रहा था। पहले एक, देखो सबसे पहले तुमने यहाँ पे लिमिट ले ली, ठीक है, एक मिनट, तुमने लिमिट ले ली यहाँ पर 2। यस सर। अब तुम्हारा लूप 2 बार चलेगा। यस सर। सबसे पहले तुमने कंट्री नेम लिया, CN में इंडिया, फिर तुमने कंट्री की क्वांटिटी ली, बात को समझना है, ड्राई रन चल रहा है, 5। उसके बाद तुमने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर किस में ले रहे हो तुम, एक्स में ले रहे हो, तुमने प्लस लिया। अब ध्यान दो, ये तीनों चीजें आ गई, कंट्री नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई, प्लस का साइन आ गया, आया नहीं आया? अब यस तुमने कंट्री नेम को प्रिंट करा दिया, इंडिया विल बी प्रिंटेड, लाइन ब्रेक होके कर्सर नीचे आ गया। अब तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो, फंक्शन में तुम क्वांटिटी और एक्स पास कर रहे हो, तो क्वांटिटी कितनी है 5, और एक्स में क्या है प्लस, ये दो चीजें पास होंगी एज ए पैरामीटर, पास होंगी। Yes, sir. यस सर। चीजें पास होंगी तो 5 प्लस के निशान बन जाएंगे। यहाँ कितने प्लस के निशान, 5। 5। अब लूप ऊपर जाएगा रोटेट होकर, क्योंकि लूप चल रहा है, तो लूप 2 बार चलना था। अब आई की वैल्यू 2 होगी। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो अनदर इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम यूजर। अब की बार कंट्री का नाम यस सर, समझ गए। अमेरिका लिया, फिर क्वांटिटी ली उसने 10, फिर उसके बाद कैरेक्टर लिया। जब ये तीनों मिल गई तब, अरे यार कस्टमर है, तुम किसी को कॉल करते हो तो पहले वो तुम्हारी कॉल को रिसीव करेगा, तुम्हारा सामान पैक करेगा, तुमको देगा, फिर दूसरी कॉल रिसीव करेगा, दूसरा सामान पैक करेगा, दूसरा सामान देगा। तो हाउ इट, अब ऐसा भी हो सकता है पहले वो सारी कॉल रिसीव कर ले, फिर उसके बाद सारा सामान पैक करे, वो एरे है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, अंडरस्टैंड? बट सर वी कैन पहले डू वन ऊपर थिंग। फंक्शन Yes, बनाया है सर, उसमें अगर n की जगह QTY ले लें। कौन बोला भैया धीरे से? सर जो ऊपर फंक्शन बनाया है, हाँ, तो उसमें n की जगह QTY लें। हाँ ले सकते हो, वो वेरिएबल और ये वेरिएबल भी सेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। बट फॉर यहाँ लूप पर भी QTY लेना पड़ेगा, सोच लो, यस सर, हाँ अभी हो सकता है जो पॉसिबल सर है। QTY को 2 बार डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग रीजन में डिफाइन कर सकते हैं, सेम रीजन में नहीं, सेम रीजन में नहीं। सर इफ वी वांट टू स्पेसिफाई एवरीथिंग एट वंस, सर तब हम लोगों को सर सब कुछ सर 2 बार लेना पड़ेगा, और सर लूप ना चला के सर हम लोग नॉर्मली सब कर देंगे। ये टर्मिनेट कहाँ पे हो गया यार, दिया तो था सब मैंने। अच्छा क्वांटिटी में डॉलर पास कर दिया यार,
क्या है, एक मिनट, अमेरिका क्वांटिटी 40 एंड $8, नो प्रॉब्लम, वर्किंग फाइन, डोंट वरी। सर वो जो ऊपर QTY है वो सर डिफरेंट ट्रीट होगा ना सर? हाँ वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों अलग अलग रीजन में है। जैसे एक अमेरिका में यूसुफ, एक इंडिया में यूसुफ, दो अलग अलग हैं, एक नहीं। थैंक यू, आई एम टेकिंग लीव नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके स्टार्टिंग के 10 मिनट आपकी क्वेरीज और डाउट्स के होंगे, और इस एग्जाम्पल को अगर नहीं समझ में आया, मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिस एग्जाम्पल इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड एनीवेयर। सर आ गया। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यू आर सुपर इंटेलिजेंट, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, देयर आर वेरी अल्टरनेटिव ऑफ दिस, बहुत सारे अल्टरनेटिव है इसके। टेकिंग लीव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सॉरी, अच्छा थैंक ये सर अगर ऊपर लिख देंगे जनरली मेन तो सर पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं होगी ना? हमारे क्लास के नीचे ही लिखा जाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ चेंज कर देंगे, आगे के हमारे सारे टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिख रहे। नहीं सर, जो हम कह रहे हैं यूजर डिफाइंड जो हमने बनाया है पूरा सर, ये हाँ, नीचे लिख दे और ये वाला ऊपर लिख दे। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर वो इसी को लेगा। ये उस केस में बनाया है कि जब आपका मेन नीचे हो और यूजर डिफाइंड क्लास ऊपर हो। ठीक है, यस। लेकिन हमेशा हम मेन को नीचे ही रखेंगे, क्योंकि बॉटम टू अप अप्रोच को बनाना है। आज मैंने सारे क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिए ना, इसको ही भेज देते हैं। ठीक है, इसे स्टडी करना और प्लस उसके बाद ये